Hello and welcome to another episode of the Misal podcast. My name is Zahid, I'm your host. On this podcast, I explore Pakistan's startup economy with some of the smartest people building the digital future in Pakistan. Today I'm joined by Ehsan Baig. He's a co-founder of GilgitApp, an online marketplace for buying and selling products. He talks about solving a real problem people in the remote areas of Pakistan have when it comes to buying and selling things. The technological challenges a startup face when building something in a place like Gilgit. Besides that, he also talks about his decision-making process when it comes to building new features for his product. Let's listen in. Welcome to the Misal podcast, Ehsan. How are you? Thank you so much, Zaid. I'm fine. How you are doing? I am doing well. Well, thank you for, first of all, reaching out to me because I had never heard about you or GilgitApp. So it was very interesting and I looked you up and I was like, okay, I really want to learn more about him and, his startup. So let's get started. Please tell me a little bit about yourself and what problem are you trying to solve with GilgitApp? Okay, Zahid, first of all, thank you so much for having me here. I really enjoy your podcast. They really gave me a lot of value. My name is Ehsan. I'm from Gilgit, Baltistan. I'm typically from Hunza Valley. I completed my BS Software Engineering from UMT Lahore. In postgraduate, I came back to my hometown and we started an app. It's known as GilgitApp. Basically, the problem GilgitApp is solving is that, due to we live in remote area. We don't have access to mainstream technology platforms like Uber, Careem, OLX, Daraz, etc. So मुझे एक ख्याल आया कि इनफैक्ट मुझे और मेरे टीम को एक ख्याल आया कि क्यों ना हम इस तरह का एक ऐप स्टार्ट कर दें जो इंस्टेंट बाइंग सेलिंग करे यहाँ पे गिलगित में तो हमने एक आइडिया स्टार्ट किया था बैक इन अगस्त 2020 एक बाइंग सेलिंग ऐप गिलगित ऐप के नाम से हमने देखा कि लोगों ने बहुत रैपिडली अडोप्शन स्टार्ट किया उसका, ठीक है. विद इन फर्स्ट वीक वी गॉट मोर देन 2000 डाउनलोड्स एंड हर कोई कह रहा था कि यार ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है हमारे लिए, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व होने लगे हैं, चीज़ें बेहतर होने लगी हैं. सो आफ्टर दैट वी गॉट ए लॉट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम ओवरऑल पाकिस्तान एज वेल. हमें पता भी नहीं चल रहा था, लोग डिफरेंट सिटीज़ से मैसेजेस करना शुरू हो गए थे कि यार हमने चीज़ें बेच दी इसके ऊपर, कुछ किसी ने हमारा कार बेच दिया, किसी ने गाड़ी बेची, किसी ने मोबाइल बेचा. तो देन वी थॉट कि अगर ये गिलगित में कामयाब हो सकता है तो व्हाई नॉट स्केल इट टू पाकिस्तान. सो फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने उसको स्केल किया पाकिस्तान में भी. तो करेंटली बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है. सो बाइंग सेलिंग ऐप है, एक मार्केट प्लेस एक्चुअली. When I was looking at the app and of course you mentioned it's a marketplace. So marketplace में हमेशा एक problem होती है chicken और egg की ना, कि पहले आप products list करें या पहले आप customers लाएं. तो it seems like you already have that kind of problem solved because there was already some demand and because you were able to create this platform and put products there, people were able to use it to buy and sell products. You mentioned that your team, right? So how many people are you talking about? How many co-founders do you have and how big is your team? We are almost 8 to 10 people. We are 2 co-founders and the company is also you can owned by parent company. It's UConnect, partially owned by parent company. तो इसमें यह है कि क्योंकि प्लेटफॉर्म UConnect ने सेटअप किया था गिलगित ऐप के लिए, देन वी केम एंड देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग दिस ऐप एंड इट इज ऑन दिस स्टेज राइट नाउ. I mean, आपकी ऐप का नाम गिलगित ऐप है, right? So because the name, a lot of people are probably know right away that आप गिलगित से हैं, ऐसा मतलब कि पता चल जाता है फौरन से. तो can you tell me a little bit more about how the startup culture is in Gilgit Baltistan area? Like, are there a lot of startups? Are there a lot of freelancers? Okay, in the recent years, we got internet, फ्री इंटरनेट. आप जो कह लो इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी हमने अभी बैक इन 2017-2018 में हमने एक्सेस किया इंटरनेट को, ठीक है. ऑल्दो चैलेंजेस अभी भी बहुत सारे हैं, बट उसके साथ क्योंकि यहाँ की जो यूथ है वो काफ़ी एजुकेटेड है, यू ऑलरेडी नो दैट, हम कोशिश करते हैं कि अपडेटेड रहें दुनिया से. तो फ्रीलांस का एक ब्रस्ट आया 2018-2017 में. आफ्टर दैट ए लॉट ऑफ कंपनीज स्टार्टेड टू डू फ्रीलांस. दे वर अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज
एंड आफ्टर दैट दे थॉट कि नहीं अभी फ्रीलांस काफ़ी हो गई है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट सम स्टार्टअप वर्क, यू नो। बैक इन 2020 कुछ स्टार्टअप्स आए थे, ठीक है। अभी भी हमारे इधर एक STP है जो कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर बोर्ड और SEO की मदद से जो कि बनाया गया है, और वहाँ पे काफ़ी स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ एक नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है, वहाँ पे भी स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं। हाँ, चैलेंजेस हैं, ठीक है, अभी भी चैलेंजेस हैं क्योंकि वी आर स्टिल अनमेच्योर, यू कैन से, बट स्टार्टअप कल्चर इज बिल्डिंग इन गिलगित, एंड नई न्यू आइडियाज आर बीइंग इनिशिएटेड बाय पीपल, ठीक है। जैसे गिलगित ऐप हमारा एक आइडिया था, उसी तरह इवन हमारे कंपनी के अंदर भी, यू कनेक्ट के अंदर भी देयर इज अनदर आइडिया। इनफैक्ट हमारे पास उसका MVP भी तैयार है, इट्स इनवॉइसिंग एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। उसी तरह आइडियाज़ आ रहे हैं, स्टार्टअप कल्चर बिल्ड हो रहा है गिलगित में। सो आई सी कि आई फोरकास्ट इन द कमिंग फ्यूचर दीज आइडियाज विल गेट बिगर एंड बिगर. Like you mentioned that there is like a lot of activity happening, and once the ecosystem matures enough, and there will be a lot more activity happening, and we'll hear more about startups from Gilgit area. Is there any other big challenge that you're having right now? Zahid, challenges में सबसे पहले तो ये है, the skill development is really a challenge for us. Being a startup, we cannot hire professionals. हमें स्किल डेवलपमेंट में खुद काम करना पड़ता है. इवन हमारी कंपनी के अंदर भी, गिलगित ऐप के अंदर भी जितने भी बंदे हैं उन्होंने पहले खुद सीखा है काम, एंड देन दे पुट ऑन कि नाउ लेट्स स्टार्ट बिल्डिंग अ स्टार्टअप. दूसरा मसला हमें ये आता है कि स्टार्टअप्स के लिए कैपिटल चाहिए, एंड इनिशियली स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन अ प्लेस लाइक गिलगित, इन्वेस्टर्स को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता इनिशियली. सो हम अभी ऐसा कैपिटल का भी मसला अभी हम फेस कर रहे हैं. अपार्ट फ्रॉम देट स्मॉल चैलेंजेस इंक्लूडिंग इंटरनेट, लाइट, अपार्ट फ्रॉम देट मैनेजिंग द ऑफिस वर्क विद स्टार्टअप. सो ये चैलेंजेस हैं, कुछ इस तरह के चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं, बट वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि हम इनको एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व कर लें और अपने आइडिया को आगे लेके जाएं. तो मैं यही पूछने वाला था कि जो जहाँ तक वेंचर कैपिटल का सवाल है, तो वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो मेरे ख्याल में इतनी एक्टिविटी नहीं रही है जहाँ तक, क्योंकि मैं काफ़ी ट्रैक करता हूँ इन चीज़ों को. तो आई हैव एन आइडिया अबाउट where startups get funded, and of course it's mostly like Islamabad, Lahore and Karachi, that's the majority. In terms of venture capital, have you personally tried to raise money for GilgitApp, and what's the process been like if you have tried it? Yeah, Zahid, अभी तक हमने honestly कोशिश भी नहीं की है इतनी, ठीक है, because we are trying to make the platform better. इसको एक stable app बनाए हैं पहले हम इसको, ठीक है. After that we will try to pitch to investor, because क्योंकि थोड़ा सा business model explain हो, थोड़ा सा traction अच्छी हो, तो इन्वेस्टर्स भी कॉन्फिडेंट फील करें आइडिया के अंदर. सो अभी जो रिसेंट स्टेट्स हैं, वी हैव मोर देन 250K डाउनलोड्स, वी आर नियर टू 300K डाउनलोड्स इन फैक्ट, एंड मोर देन 40K प्रोडक्ट्स वी हैव, एंड वी रिसीव अ लॉट ऑफ मैसेजेस दैट पीपल आर सेइंग कि हाँ हमारी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है. इवन पीपल आर रिक्वेस्टिंग कि हम अपने बिजनेसेस भी आपके ऐप के ऊपर लेके आना चाहते हैं, सो दैट वी विल अर्न अ लॉट ऑफ. सो नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट रीचिंग आउट टू इन्वेस्टर्स. ठीक है, अभी हम कोशिश करेंगे. रिजेक्शन अभी तक कोई नहीं आई, ऑल्दो वी हैवंट पिच्ड द ऐप टू द इन्वेस्टर्स. ई कॉमर्स मार्केट जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो इट्स ग्रोइंग एवरी ईयर. बिकॉज ऑफ कोविड देयर वाज दिस ग्रोथ स्पर्ट, but that has kind of slowed down since. So where do you think the e-commerce market is going, and once you expand to different cities in Pakistan, where do you think most of the differentiation about your app will come from? Zahid, इसमें ना I'll go to a background, ठीक है, I will go to the background a little bit. Pakistan is fourth biggest consumer market after China, India. हम आ जाते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान में बहुत सारे अनटैप अपॉर्चुनिटीज़ है ई कॉमर्स इंडस्ट्री में. वी हैव दराज, वी हैव सम अदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, बट स्टिल जो नंबर ऑफ यूज़र्स हैं वो अभी तक उनको ये सारे दराज और जो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो इतना एड्रेस नहीं कर रहे, ठीक है. नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट आवर ऐप, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, अभी तो हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि एक सेलर और एक बायर को कनेक्ट कर रहे हैं कोई नई या कोई यूज प्रोडक्ट्स बेचने खरीदने में. बट इन फ्यूचर वी हैव प्लान्स टू गो इनटू B2C as well, ठीक है. This is due to the because businesses are reaching out to us कि नहीं हम अपनी दुकान खोलना चाहते हैं, हम अपना बिजनेस लेके आना चाहते हैं आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर. Now
इन सच अ लार्ज कंज्यूमर मार्केट जहाँ पे इतने इंडिविजुअल यूज़र्स हैं, इतने बिजनेसेस हैं, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस, यहाँ पे आई थिंक होना चाहिए, एक कंपटीटर भी होना चाहिए और डिफरेंट ऑप्शंस भी होने चाहिए। वी बिलीव दैट कंज्यूमर के पास, ठीक है। सो दैट्स वाई वी थॉट कि हम भी इस तरह का कोई आइडिया लेके आएँ। ऑल्दो द आइडिया इज़ नॉट समथिंग वेरी न्यू, बट यू नो इट कैन वर्क इन द फ्यूचर बिकॉज दिस इज़ बिकॉज यूज़र्स आर आस्किंग, ठीक है। हम इसको मार्केट को हमेशा स्टडी करते रहते हैं तो हमें पता चलती है ये चीज़ें। सो इन फ्यूचर वी हैव प्लान्स टू गो टू B2C एज वेल, प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर हम बिजनेसेस को भी ऑन बोर्ड करें और हम उनको भी एक अपॉर्चुनिटी दे दें कि देखिए आप भी कमा सकते हैं, गिलगित ऐप के ऊपर आप लोगों के लिए भी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी। फिलहाल जो है, जो कि मुझे समझ में आता है यूजिंग द जस्ट लुकिंग एट द वेबसाइट, you basically are connecting anyone who's selling anything to Yeah, anyone who's buying anything, right? So yeah. if as a buyer I can reach out to the seller and say, I want to purchase. So when the person is interested in purchasing something, do they just communicate between themselves? Are they still using your platform? Are they, or they're just using WhatsApp? इसमें ये है कि बेसिकली आइडिया जो है बायर्स और सेलर्स को कनेक्ट करने के लिए, एक तो जो सेलर्स हैं वो अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हैं एंड जो बायर्स हैं उनको आउटरीच करते हैं कि आई एम इंटरेस्टेड इन दिस मोबाइल और दिस लैपटॉप, लेट्स टॉक, लेट्स निगोशिएट, कितने में हो जाएगा। एंड इफ़ दे कंप्लीट द निगोशिएशन दे मीट फिजिकली एंड ये एक्सचेंज करते हैं अपनी प्रोडक्ट और मनी को, ठीक है। द अदर फीचर इंटरेस्टिंग, वी गॉट आइडिया फ्रॉम एक्चुअली फाइवर, इट्स नॉट अ न्यू आइडिया, बायर रिक्वेस्ट, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं गिलगित ऐप के ऊपर और आपको अगर नहीं मिल रही है, जो एग्जिस्टिंग लिस्ट है उसमें नहीं मिल रही, तो देन यू कैन पोस्ट अ रिक्वेस्ट एज वेल कि मुझे फला टाइप का मोबाइल चाहिए या मुझे इस तरह की गाड़ी चाहिए, इस शहर में चाहिए, एंड इफ़ एनीवन हैव जस्ट लेट मी नो एंड आई विल परचेज इट। और उसी तरह वो कनेक्ट हो जाते हैं और जो सेलर्स हैं वो ऑफर भेजते हैं उनको कि या आई हैव दिस कार नाउ, लेट्स कनेक्ट, लेट्स टॉक, ठीक है। तो वो एक दोनों के साथ वो कनेक्ट होके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट होके वो क्या करते हैं, उसको परचेज करते हैं। सो करेंटली हम इतना कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं बायर्स और सेलर्स को जितना इजी हो उनको प्लेटफॉर्म इजी बनाएं और मतलब जल्दी से उनको कनेक्ट करें। और इसमें जाहिद अभी आप अगर हमारे कंपटीटर्स में देखो, जो मेन स्ट्रीम अभी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे टिपिकल जो C2C मार्केट है, बायर एंड सेलर, इस पे इतना काम नहीं हुआ, ठीक है। ऑल्दो देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म, बट यहाँ पे थोड़ी सी इनोवेशन वी फील एज अ टीम की इनोवेशन चाहिए। इनोवेशन इन द सेंस कि इवन इफ़ यू गो टू OLX एंड यू सर्च प्रोडक्ट्स, यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट, अपनी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट खरीदने में। सो व्हाई नॉट इंट्रोड्यूस समथिंग जो ये करे कि यूज़र्स का टाइम सेव करे, उनकी एफर्ट सेव करे। बायर रिक्वेस्ट एक एग्जांपल है, उसी तरह हम बायर प्रेफरेंसेस के ऊपर काम कर रहे हैं। वेरी सुन वी आर रिलीजिंग अ फ्यूचर बायर प्रेफरेंस, जो क्या करेगा, यूज़र के प्रेफरेंसेस को स्टडी करेगा कि इसको किस प्राइस टैग में चाहिए, किस तरह के प्रोडक्ट्स चाहिए, किस तरह के ब्रांड्स ये यूज़र लाइक करता है। इट्स ऑलरेडी हैपनिंग ऑन सोशल मीडिया, यू रिसीव द कंटेंट विच यू लाइक, ठीक है, वो इंटरेस्ट आपका पढ़ते हैं सोशल मीडिया। तो उस तरह का हम कोशिश करें कि लेकर आए हैं जो कि यूज़र्स को ना ऑलरेडी एक बनी बनाई लिस्ट आ जाए और उसके इंटरेस्ट मैच करे तो उसको इजी हो, प्रेफरेंस बेस्ड लिस्टिंग हो। सो इस तरह के आइडियाज़ के ऊपर हम काम कर रहे हैं। Have you marketed the app the way you want to market it, or is it just word of mouth so far? And if you have used certain marketing channels, what were the marketing channels? Was it social media? Was it something else? Up till now, we are using only social media for the marketing. We believe that digital platforms can really make a difference. अभी तक जो हमने मार्केटिंग की है वो ओनली फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, ट्विटर, लोगों को यहाँ से ही बहुत ज़्यादा पता चल रहा है और ये ट्रैक्शन जो है सिर्फ सोशल मीडिया से। बट हमने इसको स्केल करना है। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि द मोमेंट वी गेट अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, वी विल स्केल टू अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल। हम फिजिकली भी जाएंगे एंड इसको मार्केटिंग को थोड़ा सा स्केल करने की ज़रूरत है। इनिशियली वी हैव यूज्ड बिग टेक्टिक्स, व्हाट वी वर डूइंग कि जो भी हमारी ऐप के ऊपर प्रोडक्ट्स अपलोड करता था उसको हम अपनी सोशल मीडिया पे, अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे उसका लिंक देते थे प्रोडक्ट का और उसको पेड बूस्ट भी करते थे ताकि जहाँ से सप्लाई आ जाती है तो उसको डिमांड भी तो क्रिएट करना है, ठीक है, उसके लिए सेलर भी तो देना है बायर को। सो वी आर स्टिल यूजिंग इट एंड ये एक टेक्टिक रही है जिसने हमें बूस्ट दिया है इनिशियली मार्केटिंग में और इसको हम कंटिन्यू भी रखेंगे, बट इसको थोड़ा सा हम स्केल करेंगे इन फ्यूचर।
What is your exact role with GilgitApp? Like, are you leading mostly sales and marketing, or are you taking care of operations? Like, what is personally your superpower? पहले तो I'm a co-founder. I act as a co-founder. Apart from that, I act as product manager as well. Product manager का जो role होता है वो make sure करना every department is working fine. ठीक है, either it's marketing, either it's design, either it's development, technical side. तो मैं connect होता हूँ सारी टीम के साथ. ठीक है, हमने कौन सा फीचर कितनी देर में शिप करना है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है, उसका डिज़ाइन कितने टाइम पहले प्रिपेयर करना है, और आइडियाज़ को कैसे प्रायोरिटाइज करना है, और किस फीचर पे पहले काम करना है, और अगर कोई फीचर शिप होता मार्केट में तो उसका रिस्पॉन्स कितना मिलता है, व्हाट यूज़र्स आर थिंकिंग एंड व्हाट यूज़र्स आर व्हाट टाइप ऑफ फीडबैक यूज़र्स आर गिविंग. सो इस पूरे प्रोडक्ट को मैनेज करना, द रोल ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर इज टू मेक श्योर द प्रोडक्ट इज रनिंग स्मूथली एंड वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स एज वेल, एंड वी आर वर्किंग ऑन इटरेशंस में हम अच्छे काम कर रहे हैं. सो आई एक्ट एज अ प्रोडक्ट मैनेजर एज वेल. So since you talked about product management and being a product manager, let me ask you this. Is there anything in the market right now that you wish existed? Like ऐसा कोई product, ऐसा कोई feature कि किसी product का कि you wish someone had already created that you could use yourself and you would just not have to build it yourself? Yeah, it's a complex question, but I never have thought about it. अभी तक तो मेरे ख्याल में नहीं आया, लेकिन ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे अभी फीचर्स हैं जिनको बनना चाहिए था जो कि नहीं बन चुके. लेट मी एग्जांपल, हमारे पास दराज है, हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, बट जब भी हम ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाते हैं तो वी स्टिल हम बहुत सा घबरा जाते हैं अबाउट द क्वालिटी, अबाउट द प्राइस टैग. एंड इट हैपन कि मेरे साथ, मेरे दोस्तों के साथ बहुत दफ़ा हुआ है कि वो चीज़ हमें नहीं मिली जो हम मंगवाते हैं. ठीक है, सो और दूसरी बात अकाउंट्स वेरिफिकेशन. इवन गिलगित ऐप के ऊपर भी वी फेस अ लॉट ऑफ चैलेंज व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी ऑफ आवर यूजर्स. उनसे स्कैमिंग होती है अक्सर. वी हैव रिसीव्ड अ लॉट ऑफ क्यूरीज अबाउट दिस एज वेल. सो हम थोड़ा सा वरी करते हैं कि इस इन चीज़ों को ना थोड़ा सा एड्रेस करना है हमने. ठीक है, ऑल्दो वी नो दैट वी कैन नॉट कम्प्लीटली ओवरकम दैट, बट वी कैन मिनिमाइज इट टू अ गुड अमाउंट. ठीक है, हम इसको कम कर सकते हैं. सो ऐसे कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको पहले ही एड्रेस करना चाहिए था, और ये एड्रेस हो भी चुके हैं. अमेजोन इज़ डूइंग दिस, अलीबाबा इज़ डूइंग दिस, बट हमें इन चीज़ों को एड्रेस करना है. So, I mean, you mentioned verification of customers or verification of buyers. So right now, is there anything that you're doing within the app that assures the seller that the buyer is legit, or the buyer that the seller is legit? Yeah, as I already mentioned, we are getting the app stable right this moment. तो अभी हम ये ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करने लगे हैं. ठीक है, कि हमने जो स्पेशली जो सेलर्स हैं उनको कैसे वेरीफाई करना है ताकि बायर्स को भी कॉन्फिडेंस आए कोई चीज़ खरीदने से पहले कि इफ़ दिस इज़ अ वेरीफाइड सेलर देन लेट्स टॉक टू हिम और लेट्स बाय फ्रॉम हिम. तो अभी हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं. वेरी सून वी विल बी रिलीजिंग दिस फीचर एज वेल. As a product manager, of course, you are bombarded maybe with things that you could build, right? A lot of customers, a lot of, anyone, even your team is probably saying, we should build this, we should do this next. Yeah. What is your decision process like? How do you figure out what to build next? Yeah, as you already mentioned, आइडियाज़ बहुत ज़्यादा होते हैं हमारे पास. ठीक है, कि यार इस चीज़ पे काम करें, नहीं उस चीज़ पे काम करें. When we take decision, उससे पहले हम बैठते हैं टीम के अंदर. ठीक है, वी डिस्कस कि यार किस आइडिया को प्रायोरिटाइज करना बेहतर है. ठीक है, देयर कम्स कि किस फीचर का कितना रोल होगा और कितना उसके ऊपर फिर हमारी एफर्ट और टाइम लगेगा, कितना हम इन्वेस्ट करेंगे चीज़ें, और उसका फिर आउटकम कितना होगा. ठीक है, वी सिट इन मीटिंग. ठीक है, इंक्लूडिंग आवर डिज़ाइनर्स, इंक्लूडिंग आवर टेक्निकल टीम. तो हम बैठ कर उसको असेस करते हैं और हम उसको फिर देन प्रायोरिटाइज करते हैं कि या इसके ऊपर काम करना बेहतर होगा, इसका आउटकम इतना ज़्यादा है और इसके ऊपर एफर्ट इतनी लगनी है, तो लेट्स डू इट. सो देयर इज ऑलवेज अ ग्राफ, आउटकम वर्सेस एफर्ट. यू ऑलवेज वर्क ऑन आइडियाज़ विच हैव अ बेटर आउटकम बट कंपैरेटिवली लो एफर्ट. तो हम आइडियाज़ को इस तरह इनिशिएट करते हैं, डिसीजन ऐसे लेते हैं कि हम मीटिंग में बैठ के फिर डिसाइड करते हैं. Kind of a democracy in a way. Yeah, exactly. Sounds good. So what would you say your North Star metric is? I know your app is very new right now, and there's a lot of things there's a lot of directions you can go in the future, but where do you see yourself in the next 5 years, next 10 years? Well, firstly, metrics. There are a couple of metrics which really gave us confidence as a team, like the number of products
हर तीसरा चौथा बंदा एक प्रोडक्ट अपलोड करता है गिलगित ऐप के ऊपर. एंड देयर इज अनदर मेट्रिक वी ट्रैक सोल्ड आउट. यू एज ए यूज़र आपको नहीं दिखेगा, बट जब कोई यूज़र सोल्ड आउट बटन क्लिक करता है तो हम उसको इनविजिबल करते हैं लिस्ट से. वी सी दैट एवरी मंथ मोर देन 1,000 प्रोडक्ट्स बीइंग सोल्ड आउट फ्रॉम गिलगित ऐप. सो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग फॉर अस एज अ टीम. और हमारी रिटेंशन रेट, we see that almost 10% of users come back to the app in every 3 months. So the retention rate is getting better and better every day. So ये ऐसे मेट्रिक्स हैं जो हमें एज अ टीम कॉन्फिडेंस देते हैं कि या वाकई हमारा प्लेटफॉर्म यूज़र्स को फ़ायदा दे रहा है. दे आर गेटिंग वैल्यू फ्रॉम द प्लेटफॉर्म. So apart from that, the second question, from 5 years from now, I cannot exactly say कि क्या होगा 5 साल बाद, because e-commerce इंडस्ट्री तो ग्रो कर रही है, बट डायनामिक्स क्या होंगे उस टाइम, किस तरह की नई टेक्नोलॉजी आएगी. बट द मिशन इज वी आर ट्राइंग टू एम्पावर बिजनेसेस और यूजर्स, दोनों को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं. और स्पेशली जो अनटेप जो मसले हैं जिनको अभी तक एड्रेस नहीं किया गया है, द वेरिफिकेशन, द इनोवेशन इन स्पेसिफिकली इन C2C, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे और द प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा ना 10x बेटर करने की कोशिश करेंगे हम लोग. Well, this is very, very informative, and thank you so much for being on the Misal podcast, and telling me about your journey and about the product and everything. And I wish you all the best. Thank you. Thanks for listening to the Misal podcast. I hope you enjoyed the podcast and will thank me by writing a review or sharing it on social media. Make sure you follow and subscribe so you don't miss the next episode. Thanks again. See you soon.